amid the ongoing political war of words over West Bengal, CM Mamata Banerjee's speech, Union Minister Giriraj Singh has now stirred a fresh controversy, slamming West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, stating that this can't be the language of a democratic person or a chief minister, adding that the North Korean leader Kim Jong-un doesn't tolerate his opposition in the similar way. He also alleged that Mamata Banerjee doesn't tolerate the words of her opposition as well. Meanwhile, Congress MP Manikam Tagore on the tussle between the BJP and the TMC in the state of West Bengal, and Chief Minister Mamata Banerjee's speech said that it is a very serious issue and we are discussing women's safety in her house and workplace. He said that Kolkata's doctors' rape has made this issue bigger and now everybody is turning towards it and we are now needing to concentrate on the real issue. He added that we should not be getting diverted with cheap politics. He said that we all know that BJP will try to divert this into the cheap politics. He added that we should be careful now that we do not get dragged into diversion of politics. He also further stated that we should rather concentrate on the topic of women's safety and security. Meanwhile, the BJP MP and West Bengal BJP Vice President Soumitra Khan has said that senior Supreme Court lawyers are going to the National Human Rights Commission regarding the Arjikar issue. He also added that she will be also going to go because those involved in the Arjikar hospital incident case should be arrested immediately. She also stated that they are going to the NHRC against the police lathi charge on the protesters. Opposition has criticized the West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee for allegedly issuing threats to the protesting doctors and northeastern states during a public address at Trinamool Congress Chhatra Parishad Foundation Day event that took place on August 28. She in fact also warned that if Bengal is on fire, other states including Assam, Northeast Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Orissa and Delhi would also be affected heavily and Modi's position would be threatened. Meanwhile, there are some political reactions coming in. Now let's listen. मोदी इस्तीफा देंगे, वो इस्तीफा नहीं देंगी और बंगाल जलेगा तो बिहार जलेगा, उड़ीसा जलेगा, झारखंड जलेगा। ना ये जुबान कोई लोकतांत्रिक व्यक्ति का हो ही नहीं सकता, मुख्यमंत्री का। ममता बनर्जी जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं किम जोंग, वो अपने विपक्ष को बर्दाश्त नहीं करते, उसी तरह ममता बनर्जी अपने विपक्ष की बात को बर्दाश्त नहीं करते। All right. Joining me right now on the broadcast is my colleague Renik. All right. While we restore the connection. All right. Renik joins us back on the broadcast. Renik, as of now, there was this controversy that was brewing from the BJP unit of the West Bengal, but now Union Minister Giriraj Singh has also now had a huge comeback at what has come from Mamata Banerjee from West Bengal in a public address, also issuing warning to other states including Delhi as well, saying that Prime Minister Narendra Modi's position will be threatened. So we have heard how statements from Giriraj Singh target Mamata Banerjee, and in this regard especially this is only seeming to blow up, but at the very same time this is indeed rather unfortunate as the politics continues and there is ensuing war of words. But what remains to be seen is that even at this point of time the issue which is at the helm of all the political controversy is not being given its due attention. देखिए, ममता बनर्जी कल पब्लिक मीटिंग से जिस तरीके का बयान दिया है उसको लेकर जो सियासत वो चालू हो चुका है, पॉलिटिकल चर्चा चल रहा है। जो ऑपोजिशन पार्टी से
ऑपोजिशन पार्टी से ममता बनर्जी के खिलाफ उन लोग आवाज़ उठा रहा है और बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी को घेरने का कोशिश किया जा रहा है और ममता बनर्जी के कमेंट को लेकर पूरा देश भर में निंदा चल रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी की तरफ से जो बयान दिया गया था उसके बाद ही देखा गया कि हेमंत बिस्वा शर्मा एंड की तरफ जैसे जो सीएम है उनके तरफ से इसको लेकर बयान दिया गया था। इसके बाद बीजेपी का जो लीडर्स है, जो सेंट्रल लीडर्स है, उनकी तरफ से भी इसको लेकर बयान दिया जा रहा है और उसके साथ साथ ही वेस्ट बंगाल बीजेपी की तरफ से भी ममता बनर्जी के ये बयान के खिलाफ पर प्रदर्शन जारी है और ममता बनर्जी के इस तरीके का बयान और उसके साथ साथ ही ममता बनर्जी का सरकार और ममता बनर्जी का पुलिस की तरफ से जो एक्शन लगातार चल रहा है उसके खिलाफ पर जो कार्रवाई बीजेपी का प्रदर्शन वो जारी है। आज बीजेपी का जो स्टेट लीडर्स है यानी सुकांत मजुमदार स्टेट प्रेसिडेंट और उसके साथ साथ ही जो स्टेट लीडर्स है उनकी तरफ से राजभवन में राज्यपाल के साथ वो लोग मुलाकात करेंगे और ममता बनर्जी का जो बयान दिया गया है कल और जिस तरीके से पुलिस का हमला हुआ है, ये दोनों बात ही आज राजभवन में राज्यपाल के साथ बीजेपी जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है उनके साथ डिस्कस हो सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी की ये बयान के खिलाफ पर धरना अभी जारी है। बीजेपी का जो मेंबर्स है, बीजेपी का जो वर्कर्स है, उनकी तरफ से आज 7 दिन से ये धरना का मैसेज चलेगा। आज से बीजेपी का ये जो कार्यक्रम ये शुरू हुआ है और जिस तरीके से ममता बनर्जी का कल बयान था उसका प्रतिवाद में ये जो धरना इनकी तरफ से दिया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से ये धरना किया जा रहा है। धर्मतला में ये धरना अभी चल रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी का जो स्टेट लीडर्स है उनके तरफ से वो लोग आज राजभवन में जाएंगे। राजभवन में जाके 2 बजे राज्यपाल सीवी आनंद बोस के साथ उन लोग मुलाकात करेंगे। दूसरी तरफ सेंट्रल में भी ममता बनर्जी का ये जो ये बयान को लेकर चर्चा चल रहा है। बीजेपी का जो सेंट्रल लीडर है उनकी तरफ से भी ममता बनर्जी का ये बयान को लेकर बार बार से कमेंट किया जा रहा है। बार बार से ममता बनर्जी का ये जो बयान इसको लेकर वो लोग सवाल कर रहे हैं और ममता बनर्जी को जो घेरने का काम वो बीजेपी लीडर की तरफ से किया जा रहा है। कुल मिलाकर ममता बनर्जी का ये जो बयान कल ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया था उसको लेकर ममता बनर्जी को सेंट्रल की तरफ से या स्टेट की तरफ से, दोनों तरफ से बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनकी तरफ से घेरा जा रहा है। All right, Renik. Also, kindly share the light on the update of the probe that's underway right now. Has the polygraph test of all the accused concluded? And if not, who are the new targets by the CBI to conduct the polygraph test? And what are the test report results that have come so far? देखिए, ये पूरा घटना में आर्जिकर का इंसिडेंट में सीबीआई की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है उसमें कुल मिलाकर 8 लोगों का सीबीआई की तरफ से पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया है, जिसमें मेन एक्यूज संजय रॉय भी इधर शामिल है, जिसमें संजय रॉय का अलावा संदीप घोष एक आर्जिकर का प्रिंसिपल, उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया है। 3 डॉक्टर का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया है, एक सिविक वॉलंटियर, एक हाउसकीपिंग स्टाफ, उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया है। और उसके बाद ही सीबीआई की तरफ से कोलकाता पुलिस का एएसआई अनूप दत्तो, उनका भी कल पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया है। यानी सीबीआई का अभी पॉलीग्राफ टेस्ट के ऊपर ही मेनली फोकस है, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट का रिपोर्ट में क्या निकल के आएगा उसके ऊपर ही सीबीआई की नज़र है। और आज 14 नंबर दिन पर फिर से आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई की तरफ से बुलाया गया है। सीबीआई उनको समन करके बुलाया है, उनके साथ सीबीआई पूछताछ भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ सीबीआई का और एक टीम आज आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के मॉर्ग के अंदर वो लोग पहुंचे हैं, उधर छानबीन भी कर रहे हैं। और जिसके तरफ से, जो डॉक्टर्स की तरफ से ये पोस्टमार्टम किया गया था, शायद उनके साथ भी बातचीत हो सकता है सीबीआई ऑफिशियल्स का। कुल मिलाकर एक तरफ जब सीबीआई का जांच जारी है, दूसरी तरफ संदीप घोष के ऊपर सीबीआई का नज़र है। 14 नंबर दिन पर संदीप घोष को आज भी बुलाया गया है। आज भी सुबह 9:30 बजे के आसपास संदीप घोष सीबीआई ऑफिस में आ पहुंचे हैं और उधर सीबीआई का जो इंट्रोगेशन आज भी चलेगा। और संदीप घोष का जो फ़ोन को भी सीबीआई की तरफ से जब्त किया गया है और सीबीआई की तरफ से उनका जो कॉल डिटेल्स वो भी देखा जा रहा है। उसके साथ साथ ये संजय रॉय का जो दोस्त और एक सिविक वॉलंटियर और एएसआई अनूप दत्तो, ये तीनों के बीच में क्या कनेक्शन था? उस रात में संजय के साथ क्यों बार बार अनूप दत्तो का फ़ोन कॉल हुआ था? अनूप दत्तो के साथ क्या वो डिस्कस कर रहे थे? या जिस दिन सुबह ये डेड बॉडी रिकवर हुआ था उस दिन सुबह अनूप दत्तो के साथ ये संजय रॉय का क्या बातचीत
हुआ था उस बारे में भी सीबीआई की तरफ से जानना चाहते हैं और इसी वजह से सीबीआई की तरफ से अनूप दत्त को भी पूछताछ किया जा रहा है और अनूप दत्त का कल पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया है और उनका रिपोर्ट भी 2-3 के अंदर सीएफएसएल की तरफ से दिया जाएगा। सीएफएसएल की तरफ से ये पॉलीग्राफ रिपोर्ट देने के बाद ही ये केस कौन सी तरफ जाता है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.